السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ ناظرین، جب سے کرونا کی وبا کا آغاز ہوا ہے تو جو انسانی زندگی ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ معیشت زبوں حالی کا شکار ہے تو وہیں پر جو انسانی زندگی کے روزمرہ کے کام تھے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی تعلیم تھی وہ بھی اس سے شدید متاثر ہوئی ہے۔ اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں، ملک کی بات کریں یا دیگر اضلاع کی بات کریں تو گزشتہ 4 ماہ سے ملتان کے جنوبی پنجاب کے اسکولز بند ہیں اور بچے گھروں میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وبا کی شدت میں اضافہ ہوا تو حکومت و محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ بچوں کو جو کہ 8ویں کلاس میں تھے ان کو اگلی کلاسوں میں پروموٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو 9th اور 10th کلاس کے طالب علم ہیں ان کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹر کے طالب علموں کو بھی اس حوالے سے پروموٹ کرنے کی پالیسی کا بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو والدین ہیں وہ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ان کے بچے گزشتہ 4 ماہ سے گھروں میں موجود ہیں اور اس حوالے سے تعلیم سے دور نظر آ رہے ہیں، جبکہ جو دیگر سکولز ہیں، نجی سکول مالکان ہیں، وہ ان کو ہر مہینے جو فیس کا ووچر ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے سکول کی فی پے کرنا کرونا کے دنوں میں، اور اس حوالے سے بچوں کا سکول بھی نہ جانا، اس سارے امور پر بات کرنے کے لیے ہم والدین کے پاس پہنچے ہیں اور ہم ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ وہ ان حالات میں کیسے گزار رہے ہیں اور جو بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اس پر کیا کہیں گے، اور جو ہر مہینے ان کو سکول مالکان ووچر بھیجتے ہیں فیسوں کے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ آنٹی بتائیے گا، سکولوں کے حوالے سے بتائیے گا، سکول بند ہیں کرونا کی وجہ سے، فیسیں کیا آپ کو جو سکول مالکان ہیں فیسیں آپ سے لے رہے ہیں بچوں کی؟ جی فیسیں لے رہے ہیں، اور 10% انہوں نے کم کیا، حتیٰ کہ گورنمنٹ نے کہا تھا 20% کم کریں گے، انہوں نے 20% نہیں کم کی، 10% کم کی ہے۔ اور ٹیچروں کو بھی نہیں پے دے رہے پوری، ان کو جو پرانے ٹیچریں ہیں ان کو بھی تقریباً آدھی فیس دے رہے ہیں، اور جو نئی ٹیچریں ہیں ان کو تو دے ہی نہیں رہے، پیسے ہی نہیں دے رہے۔ اچھا بتائیے گا، آپ کے کتنے بچے سکول میں ہیں اس وقت؟ میرے 2 بچے سکول میں۔ تو ان کی فیسیں آپ ہر مہینے ادا کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ہر مہینے ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ ان سے کہا نہیں کہ کرونا کی وبا چل رہی ہے تو مشکل ہے، تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ کوئی نہیں مانتا بھائی، کوئی مانتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ان کو بڑے بڑوں کو کون پوچھے گا، کوئی پوچھتا ہی نہیں، نہ ہی وہ مانتے ہیں۔ انہوں نے کتنا مشکل ہے ان دنوں؟ یہ ہے کہ میرے میاں باہر پھنسے پڑے ہیں، وہ ان کو پیسے نہیں مل رہے، تنخواہیں ان کی روکی پڑی ہیں، تو ہم گھر کا گزارا بڑی مشکل سے کر رہے ہیں، کبھی تیرے سے مانگ کبھی میرے سے مانگ، ایسے کر کے فیسیں بھر رہے ہیں تاکہ بچوں کو نکالے نا۔ بالکل، روزگار کا سلسلہ بند ہے اور اس حوالے سے بچے بھی جیسے کہ مختلف سکولوں میں ان کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں، وہاں پر اپنی پڑھائی کر رہے تھے، تو اس حوالے سے والدین کا یہ کہنا ہے کہ کافی مشکل صورتحال ہے۔ اچھا آپ بتائیے گا، کیا کہیں گی، سکول جو مالکان ہیں وہ تو فیسیں وصول کر رہے ہیں، تو کتنا مشکل ہے فیسوں کی ادائیگی؟ فیسوں کی مشکل تو بہت زیادہ ہے، یہ کہ سمجھو روٹی گھر کی چل جائے تو وہ بڑی مشکل ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ میسج کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فیس نہیں جمع کروائیں گے تو آپ کے نام خارج کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ جب کہا ہے کہ فیس معاف کریں تو یہ کیوں نہیں معاف کرتے؟ بچوں کی کتنی فیس پے کر رہے ہیں ماہانہ؟ 6000 کر رہے ہیں۔ 6000 ہر مہینے پے کر رہے ہیں؟ ہاں جی 6000، میرے 3 پوتے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حکومت کی جانب سے بھی ابھی کوئی خاص اعلان نہیں کیا گیا، اور جو سکول مالکان یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فیس پے نہ کی تو نام خارج ہو جائے گا، اور اس ڈائری کی بنا پر آپ فیس پے کرتے ہیں۔ ہاں جی، ظاہر ہے ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، تڑی ہے، تو ہم پھر ظاہر ہے ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہوتا ہے، اگر نہ کریں گے پھر سکول چینج کرنا پڑے گا۔ اور کئی دنوں سے بچے کئی مہینوں سے گھر ہیں، تو کیا مطالبہ کریں گے، اسکول کھولے جائیں؟ ظاہر اسکول کھولے جائیں، یہ کب تک بیماری رہے گی؟ بچوں کا تو پڑھائی پہ بہت اثر پڑ رہا ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، بچے گھروں میں کہاں پڑھتے ہیں بچے؟ اسکول کی روٹین ہے جو کریں، وہ کہتے ہیں جی وہ لے جاؤ آ کے نوٹس لے جاؤ، یہ لے جاؤ، تو گھر میں پڑھاؤ، گھر میں پڑھو، گھر میں ایسے تو نہیں نہ چلتا۔ اب سال بند رہے تو سال کے بچوں کے تو سال ختم ہو گیا نا، بغیر پڑھائی کے آگے کلاس کر دیں گے تو وہ کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ؟ تو حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے فیسوں کے حوالے سے؟ یہ فیس معاف کریں، کیونکہ یہ فیس معاف کریں، نوٹس بھیج رہے ہیں، نوٹس پہ میسج بھیج رہے ہیں موبائلوں پہ۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے والدین کا موقف جانا، یہی کہنا ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز کے مالکان ہیں وہ تو اپنی فیسیں وصول کر رہے ہیں،
हर महीने नोटिस भेज दिया जाता है कि अगर फ़ीस पे ना की गई तो बच्चे का नाम स्कूल से खारिज कर दिया जाएगा। यकीनन वालिदैन इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। एक जानिब उनके बच्चे घरों में मौजूद हैं, तालीम से दूर नज़र आते हैं, वहीं पर जो रोज़गार का सिलसिला है वो भी बंद नज़र आता है, जबकि तीसरी जानिब जो फ़ीसें हैं वो भी अदा करनी है। तो इस हवाले से वालिदैन मुतालबा करते नज़र आते हैं कि हुकूमत इस हवाले से हिकमत अमली बनाए और इस हवाले से जो क्लासों में अगली क्लासों में प्रमोट किया जाए तो वालिदैन इन फैसलों पर भी मुतमिन नज़र नहीं आते। वालिदैन का यही कहना है कि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अगली क्लास में कैसे जाकर अपनी तालीम को अच्छे अंदाज में जारी रख सकेंगे। तो वालिदैन यही मुतालबा करें कि हुकूमत इस हवाले से वाज़ेह पॉलिसी बनाए ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो सके। हम मज़ीद भी वालिदैन से बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे वालिदैन से और इस हवाले से वालिदैन का यही मौक़िफ़ है कि स्कूल्स की जो निजी स्कूल्स की फ़ीसें हैं उनको इस हवाले से उनको वसूल करने से रोका जाए। हमारे साथ कुछ और भी वालिदैन हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो उसके बारे से क्या कहते हैं। तो भाईजान बताइएगा, एक जानिब कोरोना की वबा है, दूसरी जानिब स्कूल बंद हैं और फ़ीसें भी वसूल कर रहे हैं जो निजी स्कूल मालिकान है। कितना मुश्किल है इस सूरत हाल में फ़ीसें अदा करना? हाँ, बहुत मुश्किल है। 4 माह से रोज़गार भी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से दुकानें, कारोबार, हर चीज़ बंद है और स्कूल वाले पूरी फ़ीस ले रहे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 6000 रुपये फ़ीस उनकी पे करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई अच्छी पॉलिसी निकाले ताकि जो है ना गरीब बंदा मुतासिर ना हो। अब मैं खुद अपने बच्चों की फ़ीस बड़ी मुश्किल भरता हूँ, तो जो है ना अगर नहीं भरता तो स्कूल से नाम काटने के बारे में कहा जाता है। तो ये इसलिए जो है ना बड़ा मुश्किल है इस दौर में ना पेड करना, कि लॉकडाउन भी चल रहा है, कारोबार भी बंद है, हर चीज़ बंद है। 4 महीने से आपके बच्चे घर पे ही हैं, एकेडमी जाते हैं, स्कूल तो बंद है? नहीं, एकेडमी जा रहे हैं, बस स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल की फ़ीस पेड कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो वो मैसेज कर देते हैं कि आपके बच्चे का नाम ना स्कूल से काट दिया जाएगा। आप एकेडमी की भी फ़ीस पे कर रहे हैं, स्कूल की भी फ़ीस पे कर रहे हैं और बच्चे भी आपके स्कूल नहीं जा रहे हैं? हाँ, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो बल्कि स्कूल अमले को भी ये लोग ना उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे, तो जो है ना लेकिन हमसे फ़ीस पूरी पेड ले रहे हैं। और गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि ये 20% डिस्काउंट देंगे फ़ीस में, वो भी कोई नहीं है, पूरी की पूरी फ़ीस हम पेड कर रहे हैं। अच्छा, 20% वाला जो उनका हुकूमत का ऐलान था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया? बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो आपने कोई शिकायत नहीं की कि जब हुकूमत ने ऐलान किया तो आप इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? असल हम फ़ीस नहीं पेड करते तो वो तब बच्चों का नाम खारिज करने का करते हैं। अगर शिकायत करेंगे तो फिर हमारे बच्चों का नाम ही खारिज कर देंगे वो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि कितना मुश्किल है वालिदैन के लिए कि वो सिर्फ अपने हक़ के लिए भी आवाज़ इसलिए नहीं उठा सकते कि उनको ये डर रहता है कि उनके बच्चों का नाम स्कूल से खारिज ना हो जाए और उसके बाद जब स्कूल ओपन हो तो दोबारा एडमिशन कराने में मसला होगा। और भी हमारे साथ वालिदैन मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, इस दौर में जो बच्चे हैं वो तो अब स्कूल जा नहीं रहे, कितना मुश्किल है घरों में बच्चों को संभालना और फिर तालीम का उनका हर्ज हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले यही कहेंगे कि हुकूमत को सबसे पहले तवज्जो करनी चाहिए। जो बच्चे घर में बैठ गए हैं, जिनके वालिदैन फ़ीसें नहीं भर सकते, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे गलियों में जाएंगे, आवारा घूमेंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए लाजमी तवज्जो करनी चाहिए हुकूमत को, क्योंकि अगर ये स्कूल खुलेंगे तो बच्चे स्कूलों में जाएंगे, अच्छी तरबियत हासिल करेंगे, इस तरह वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, वो तो कहते हैं कि जी हमारे पास बिल्डिंग का किराया पे करने के पैसे नहीं हैं, हमारी तो वालिदैन फ़ीस देते नहीं हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? तो ज़ाहिर है काम शाम कोई होगा तो काम करेंगे तो फ़ीसें भरेंगे, तो काम शाम नहीं है तो हम फ़ीसें कहाँ से भरें? जी बिल्कुल, इस हवाले से वालिदैन का यही कहना है कि जब रोज़गार नहीं होगा, रोज़गार के ज़राए ख़त्म हो जाएंगे और पूरी दुनिया जैसा कि इस वक्त कोरोना की लपेट में है तो मुश्किल है सूरत हाल को मैनेज करना, घर को चलाना काफ़ी मुश्किल है, 3 टाइम का खाना बच्चों को खिलाना काफ़ी मुश्किल है। तो इन दिनों में फ़ीस पे करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। तो इस हवाले से वालिदैन यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि हुकूमत इस हवाले से वाज़ेह पॉलिसी दे और इस हवाले से जो निजी स्कूल मालिकान हैं उनके हवाले से भी पॉलिसी बनाए ताकि जो वालिदैन हैं उन पर इसका बोझ ना आ सके। जबकि दूसरी जानिब हम कोशिश करेंगे कि जो स्कूल मालिकान हैं उनसे भी बात करें, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो किन मुश्किलात से दो चार हैं, वो फ़ीसों की वसूली के हवाले से क्या कहते हैं, हम उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम
ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ ہم نے پہلے والدین سے بات کی، ان کے مسائل جانے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم پہنچے ہیں ملتان کے پرائیویٹ سکولز کے ان مالکان کے پاس جن سکولوں کی فیسیں لو لیول کی ہیں، 500 روپے سے لے کر 1500 روپے تک ماہانہ فیس وصول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے بھی مسائل سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے سکول مالکان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اب رینٹ پے کرنے کا کرایہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو مالکان ہیں، بلڈنگز کے مالکان، وہ اس حوالے سے وہ ان کو نوٹسز بھیج رہے ہیں، بلڈنگز خالی کرا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ کرونا کی وبا چلتی رہتی ہے، تو کیا جو ہمارا اسکول کا سسٹم ہے اور اس حوالے سے ہمارے جو نجی اسکولز ہیں، کیا وہ چل پائیں گے آنے والے 4 مہینوں میں یا 6 مہینوں میں، یا جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ملتان کی ایک نجی اسکولوں کی تنظیم ہے، ان کے عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، جیسے کہ کرونا کی وبا چل رہی ہے اور 4 مہینے سے اسکول بند ہیں، کیا سمجھتی ہیں کتنا مشکل ہو رہا ہے آپ کو اپنا اسکول چلانا، اپنے اسٹاف کو برقرار رکھنا، اور جو بلڈنگ کا سیٹ اپ ہے؟ 13 مارچ میں جب ہمارے پاس نوٹس آیا کہ اسکول کلوز کر دیے جائیں، تو اس ٹائم تک ہماری 20% ریکوری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کچھ پیرنٹس نے ہم سے تعاون کیا، مزید فی جمع کروائی، تو یہ 40 تک پہنچ گئی۔ اب 40% ریکوری میں ہم نے ٹیچرز کو پے دی، بلڈنگ کے رینٹ دیے، مارچ کے اوکے سوکے رینٹ ہم نے پے کر دیے، لیکن اپریل سے ہم رینٹ پے کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم پیرنٹس کو کال کرتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں ہمارا اپنا کام نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی انکم نہیں ہے، ہم کیسے پے کر سکتے ہیں؟ اب بلڈنگ مالکان کو دیکھیں تو بعض بلڈنگ مالکان ایسے ہیں جو ڈیپینڈ ہی بلڈنگ کے رینٹ پر کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی جگہ مجبور ہیں، لیکن کچھ بلڈنگ مالکان ہیں تعاون کر رہے ہیں، لیکن موسٹلی بلڈنگ مالکان تعاون نہیں کر رہے ہیں، بلڈنگ خالی کروانے کے نوٹس دے رہے ہیں۔ تو میں حکومت وقت سے اپیل کرتی ہوں کہ کم از کم بلڈنگ اونرز کو یہ کہا جائے کہ ایک ادارہ ان کی بلڈنگ میں 5 سال سے 7 سال سے 10 سال سے یا شاید اس سے بھی زیادہ سالوں سے چل رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس وقت ان اونرز سے تعاون کریں۔ یہ مشکل وقت ہے پوری عوام پر، پورے پاکستان پر، یہ مشکل وقت ہے۔ مشکل وقت ہے، یقیناً مشکل وقت ہے۔ والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم سے فیسیں وصول کی جا رہی ہے، جبکہ ہم جب ٹیچر سے بات کرتے ہیں، پرائیویٹ سکولز کے ٹیچر سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی۔ مالکان سے بات کرتے ہیں، جسے ہم بات کریں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رینٹ ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ کس طرح چلے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ 4 مہینے گزر گئے اس کو، وبا کو، اب مزید بھی آگے نہیں پتا یہ کب وبا ختم ہوگی، تو یہ سلسلہ کیسے مینیج ہوگا؟ جب لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا ہے، جب ہم ساتھ دیتے ہیں بغیر کچھ گورنمنٹ سے لیے اور کوئی ڈیمانڈ کیے بغیر، تو کیا گورنمنٹ کا اس ٹائم فرض نہیں بنتا کہ ہم پر شفقت کا ہاتھ رکھے، ہمیں بھی نظر انداز نہ کیا جائے؟ ہم جب پاکستان کے بچوں کا مستقبل بناتے ہیں، ایک اچھا تعلیمی معیار کم فی میں دیتے ہیں، پیرنٹس ہم سے بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، ہمارے اسکولز کے رزلٹ بھی بہت اچھے ہیں، ہمارے اسکول کے رزلٹس بیک پر جا کر دیکھ لیے جائیں تو بہت اچھے مارکس بچے گین کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ گورنمنٹ کا فرض نہیں بنتا کہ وہ ہمیں نظر انداز نہ کرے؟ بالکل، اس حوالے سے یہاں بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے، حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت اس حوالے سے پالیسی کو واضح کرے۔ اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ عہدیداران موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے۔ اچھا بتائیے گا، حکومت کی ابھی تک واضح پالیسی نہیں آ سکی، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں، کبھی کلاسوں میں پروموٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے، 8ویں کلاس کو تو پروموٹ کر دیا گیا، باقی کے لیے ابھی نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہیں، اس حوالے سے بھی اب کیا ہے؟ اب اسکول تو اب والدین کو بھی پتہ ہے کہ اب ہمارے بچے اگلی کلاسوں میں پروموٹ ہو گئے ہیں، تو اس سارے سلسلے میں کس طرح فیسیں وصول کر سکتے ہیں آپ، یا اپنا سیٹ اپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ فی الحال تو اسکول کے جو فیسوں کی وصولی ہے وہ بہت ہی لو ہے، خاص طور پہ جو چھوٹے اسکولز ہیں وہاں پہ ایک تو والدین بچے وہ آ رہے ہوتے ہیں جن کی مطلب کہ کیپیسٹی والدین کی کم ہے، نمبر 1، نمبر 2 وہ دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں کے، کچھ لوگ جو پے کر سکتے ہیں وہ بھی پے نہیں کر رہے۔ پچھلے جو 2-3 مہینے گزرے ہماری جو فیس ریکوری ہے وہ 15 سے 20% ہے، اس میں ہم اپنا گھر چلائیں، اپنے اسٹاف کو سیلری دیں، یا جو ہماری بلڈنگز رینٹ کی ہیں وہ رینٹ ادا کریں، تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے۔ اس لیے ہمیں والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا گزارا نہیں ہو رہا، پینڈیمک ہے، پوری دنیا متاثر ہے، کاروبار بند ہے، ملک میں بھی لاک ڈاؤن تھا، جنوبی پنجاب میں بھی لاک ڈاؤن تھا، روزانہ کیسز آ رہے ہیں، تو 4 مہینے اسکول ویسے بند ہیں، تو ہم کیسے فیس ادا کریں؟ دوسری جانب آپ کی بھی ڈیمانڈز ہیں، تو اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے بچے کا تو وہ پورے سال کے لیے ہوتا ہے، 1-2 مہینے کے لیے نہیں، تو والدین پابند ہیں
पूरे साल की फीसेस देने के अगर वो नहीं दे सकते बिलफर्ज, तो हुकूमत को चाहिए कि वो कोई ऐसा रिलीफ पैकेज का ऐलान करे, या कम अज़ कम जो स्कूल के बच्चों की फ़ी है वो एक फ़ीस तय कर ले मिनिमम इतनी बना के। वो जो छोटे स्कूल्स हैं ख़ास तौर पर जो शोबा तालीम में जिनका किरदार हमेशा बहुत नुमायाँ रहा है, पाकिस्तान के 70% जो स्कूल हैं वो इंतहाई कम फ़ीसद वाले हैं। तकरीबन हमारे 40 to 45% जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं स्कूलों से मुल्तान में आपके पास कितने स्कूल्स हैं जिनके साथ आपने लाइजन बनाया हुआ है और आपके साथ एक एजेंडे पर मुत्तफिक हुए हैं? हमारे पास तकरीबन 200 के लगभग स्कूल हैं जो इस टाइम हमारे साथ आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा स्कूल्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी आएंगे। सबके मसाइल एक हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मुल्तान में, आप लोगों को पता ही होगा, एक टीचर ने ख़ुदकुशी की है। एक हमारे साथी स्कूल ओनर जो हैं वो अपना शदीद मायूसी का शिकार होके ज़हनी अमराज और मतलब कि इतना वो परेशान हुए, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है। और भी बहुत सारे लोग मेरे ज़ाती दोस्त हैं जो जिनका बीपी का मसला बन गया, बहुत सारी बीमारियां बन चुकी हैं। हम लोगों ने 10 साल 15 साल 20 साल शोबा तालीम की खिदमत की है। अब हमें ज़िंदा रहने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए हमें मुसीबत बनी हुई है कि हमने ज़िंदा कैसे रहना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे करना है, अपने स्कूल को कैसे चलाना है, अपने मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको बरकरार कैसे रखना है। और अगर बिलफर्ज ये छोटे स्कूल बंद हो गए, 50 to 60% स्कूल बंद हो गए, तो 2 करोड़ बच्चा जो इन स्कूलों में है उनमें से तकरीबन 50 to 60% बच्चे ऐसे होंगे जो जिनके पास स्कूल नहीं होगा। तो क्या हुकूमत के जो अदारे हैं या जो इतने महंगे तलीमी अदारे हैं, क्या फिर वालिदैन वो बर्दाश्त कर पाएंगे उन स्कूलों में जाना? इस हवाले से मेन पॉइंट ये, क्योंकि मुल्तान के सरकारी स्कूल्स की बात करें तो 1300 के करीब मुल्तान के सरकारी स्कूल हैं, 20 लाख से ज़्यादा की आबादी है, जो कि नाकाफ़ी हैं। सारा सेटअप चलता है जो निजी स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल उसके साथ साथ सरकारी स्कूल के साथ। हम मज़ीद भी बात करते हैं इस सवाल से। अच्छा, आप बताइएगा, आपका मुतालबा हुकूमत से अब क्या होगा? ना तो आप फ़ीस ले रहे हैं, वालिदैन आपको फ़ीस नहीं पे कर रहे, मालकान आपसे किराया मांगते हैं, हुकूमत ने अभी कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया। क्या डिमांड करते हैं कि इन हालात में जो कम फ़ीस वसूल करने वाले स्कूल्स हैं उनके लिए क्या पैकेज अनाउंस किया जाए ताकि आप अपना सेटअप चला सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कुछ मसाइल का ज़िक्र कर दूं। आप देखें कि एक स्कूल के साथ करीबन 4 से 5 और भी कारोबार मुंसलिक होते हैं, जिनमें हमारे बुक सेलर हज़रात हैं, जिनमें हमारे कैंटीन वाले हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ जो बच्चे पिक एंड ड्रॉप लेते हैं, उनके जितने भी मतलब जो उनको लेकर आने वाले हैं, जो रिक्शा हज़रात हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। तो एक इंडस्ट्री इस टाइम हमारी ज़वाल की तरफ जा चुकी है और इस टाइम करीबन 50% से ज़ायद हमारे इदारे बंद हो चुके हैं। गो हम उनके लिए एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं और उनके जो बिल्डिंग ऑनर्स हैं उनके साथ हम जाके मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, मगर कुछ हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। बेशक यही कहना है कि अगर आपके पास रेंट नहीं है तो आप बेशक अभी की अभी बिल्डिंग हमारी खाली कर दें। आपका मुतालबा है कि स्कूल खोल दिए जाए? देखिए कि करीबन इस टाइम पूरा मुल्क SOPs के तहत खुल चुका है। अगर गवर्नमेंट चाहे हमें बाकायदा SOPs बना के दे, हम उसे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, तो बेहतर है कि स्कूल खोल दिए जाएं। अगर इस हवाले से मुतालबा भी ये आ रहा है कि SOPs के तहत अगर स्कूल्स खोले जाएं तो उनको ओपन किया जाए, लेकिन हम दूसरी जानब देख रहे हैं कि केसेस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से टीचर तंजीमों का यही कहना है कि हुकूमत जो स्कूल्स हैं उनके हवाले से भी किसी पैकेज का ऐलान करें ताकि वो अपना सर्कल चला सकें, क्योंकि अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में सैकड़ों निजी स्कूल्स हैं और उसके अलावा कुछ स्कूल्स हैं जो कि ज़्यादा फ़ीसें लेते हैं, वरना जो मुल्तान के नवाही इलाकों में स्कूल्स हैं वो कम बजट के लेवल के स्कूल्स हैं, वहाँ पर स्टाफ भी मौजूद होता है। और अगर हम बात करें तो इस हवाले से काफ़ी शिकायत टीचर्स की भी आ रही हैं कि उनको तनख्वाहें फराहम नहीं की जा रही, जबकि दूसरी जानब मालकान ये कहते हैं कि उनके पास बिल्डिंग के किराया पे करने के भी पैसे नहीं हैं। तो इस हवाले से हुकूमत से इनका यही मुतालबा है कि पॉलिसी को वाज़ह किया जाए और कोई पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि ये अपना सेटअप चला सकें। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, और जब से कोरोना वायरस की वबा का आगाज़ हुआ है तो महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी इस हवाले से कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिन पर मुख्तलिफ राय आ रही है। वालिदैन कुछ और कहते हैं, उसके अलावा टीचर्स की राय अलग है, जबकि एजुकेशन अफसरान ये कहते नज़र आते हैं कि इन सूरत हाल में ये मुश्किल डिसीजन उनकी मजबूरी है। इस हवाले से हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट हैं, उसके अलावा सीनियर टीचर हैं और बैरून मुल्क से भी तालीम हासिल मुकम्मल करके आए हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर खाकान साहब। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जब से कोरोना वायरस की वबा का आगाज़ हुआ है हमारे तालीमी इदारे बंद हैं, तकरीबन 4 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे सरकारी हो। क्या समझते हैं कि इन हालात में स्कूल्स का बंद रहना कैसा है? देखिए, ये हमारी बड़ी बदनसीबी है। ये हालात जो हैं लाइफ टाइम में कभी कभी आते हैं, लेकिन हमने बदनसीबी हमारी ये है कि हमने हमेशा की तरह हर चीज़ को इडहाकिज़्म का शिकार किया हुआ है। हमने कोई तालीमी पॉलिसी नहीं बनाई है, जिसके नतीजे में आज सिर्फ पंजाब बोर्ड के जो एजुकेशन बोर्ड के जो तलबा हैं उनकी तादाद 14 लाख से ज़्यादा है जिनका मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। आपने देखा होगा, आपके शायद इल्म में होगा कि मैट्रिक के तलबा के इम्तहानात हो चुके हैं, लेकिन 4 माह गुजरने के बावजूद उनकी अभी तक मार्किंग शुरू नहीं हुई। तो पेरेंट्स बेयकीनी का शिकार हैं। इसी तरह जो सबसे अहम मसला है वो 12वीं के तलबा का है, जिनको बग़ैर इम्तहान के आगे प्रमोट कर दिया गया है। उनको FSC और FA की डिग्रियां जारी की जाएंगी, जो मेरे ख्याल में तारीख़ी गलती। मैं इसी हवाले से सवाल पाना चाह रहा था कि बोर्ड एजुकेशन ऑफिस ने, महकमा एजुकेशन ने ये फैसला किया कि क्लासेस प्रमोट की जाएँ। स्टूडेंट्स जो 8वीं क्लास के हैं उनको 9th वाले मैट्रिक में, और उससे 11th वाले 12th में, और जो 12वीं वाले हैं उनको डिग्री दे दी जाए। तो इस हवाले से हम फ़ैसला हो गया, नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट ने सारा साल मेहनत किया है वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरा इम्तिहान होगा, इस बार मैं अच्छे नंबर लूँगा। और ये कोई 1-2 स्टूडेंट तो है नहीं, लाखों की तादाद में स्टूडेंट हर साल इनरोल होते हैं। तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एक स्टूडेंट के माइंड पे? और जब वो दिखेगा कि उसको उस मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, तो क्या वो आगे यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकेगा जिसमें वो चाहता है कि फ़लाँ मेरे जो डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन हो सके? जी देखिए, बात यह है कि मैंने जैसे पहले कहा, ये सिर्फ तालिब इल्मों के ख्वाब तोड़ने के मुतरादिफ नहीं है, बल्कि वालिदैन के भी ख्वाब टूटेंगे, वालिदैन की उम्मीदें टूटेंगी, वालिदैन का मुस्तकबिल अपने बच्चों के साथ उनका मुस्तकबिल भी दाव पे लगा हुआ है। वालिदैन इतने गरीब हैं कि अपनी जायदादें और ज़ेवरात बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं। उन बच्चों को जब उनके डिज़ायर्ड फील्ड्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, जिसका ख्वाब है डॉक्टर बनने का, जिसका ख्वाब है इंजीनियर बनने का, उसका मेरिट ही नहीं बनेगा। और मेरिट का क्या तरीक़ाकार रखेंगे ये अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। इनने सिर्फ ये तय किया है कि 11वीं के नंबरों की बुनियाद पे 12वीं के अंदर जो बच्चे हैं उनको एग्जैक्ट सेम नंबर दे के एडिशनल 3% नंबर दिए जाएंगे, और उनके जो प्रैक्टिकल्स में नंबर लगने थे उनकी परसेंटेज उनके 11वीं के इम्तहानात के हिसाब से होगी। तो मैक्सिमम नंबर भी अगर लगाए जाएँ तो 35% से ज़्यादा बनते। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज कहते हैं कि जो स्टूडेंट 11वीं में जितने नंबर लेते हैं 12वीं में भी उसके उतने होते हैं। हमने 3% की इसलिए परसेंटेज उनको दिया है कि अगर वो मेहनत करता है तो उसको उसके हिसाब से 3% का हम एडवांटेज दें। ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मेरे ख्याल में बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है। बहुत सारे बच्चे मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और बहुत ज़्यादा तवज्जो से ज़्यादा बेहतर, आधे से भी ज़्यादा नंबरों का फ़र्क पड़ जाता है। आप कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि सारे बच्चों का इंटेलेक्ट लेवल एक जैसा है? तो क्या आप सबको मार्जिनलाइज नहीं कर रहे हैं? आप सब लोगों के मुस्तकबिल को दाव पे नहीं डाल रहे हैं? और दूसरी बात, आप मेरिट सिस्टम के अंदर आप ये देखिए कि बहुत सारे, हमारा तो निज़ाम तालीम है ही रट्टे के ऊपर। जो रट्टे के शिकार तालिब इल्म हैं, तो बहुत सारे जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो अहलियत बाकी लोगों से ज़्यादा है, लेकिन वो रट्टे की बुनियाद पे आने वाले जो टेस्ट के रिज़ल्ट्स होंगे, जिनको हम एंट्री टेस्ट कहते हैं, उसकी वजह से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं वो पीछे रह जाएंगे और दूसरे कैंडिडेट्स वो आगे चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से कोई पॉलिसी तो नहीं आ सकी अभी तक, वाज़ेह पॉलिसी। आपके पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, आप स्टूडेंट्स को काफ़ी गाइड भी करते हैं, तो आजकल स्टूडेंट किस तरह आपके सामने आ रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं? मतलब कि एक स्टूडेंट की तबीयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उस ना स्कूल जा रहे हैं, ना उसको अपने नंबर्स का पता है, ना उसके इम्तिहान का पता है उसका कब होगा, और उससे ये पता है कि मैं पास हो गया हूँ,
تو ایک اسٹوڈنٹ کی کیا کیفیت ہے آج کل؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے بچے بہت بے چینی کا اور بے یقینی کا شکار ہیں. بچوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. آپ یقین کیجئے بہت سارے بچے جو اس اہل ہیں کہ ان کو سرکاری کالجز میں، یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں داخلے ملنے چاہیے، وہ بچے اپنی اس اہلیت، اس موجودہ نظام کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنی اہلیت کھو چکے ہیں یا کھو دیں گے، جس کے نتیجے میں بچوں کے پاس یہ آپشن ہی نہیں رہے گی کہ وہ ان کالجز میں، یونیورسٹیز میں داخلے لے سکیں، اور والدین کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو سیلف فائنانس کے اوپر داخل کر سکیں. آپ یقین کیجئے کہ ہمارے ملک میں یہ حالات ہیں کہ والدین اپنے زیورات اور جائیدادیں بیچ کے اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس امید پہ پڑھاتے ہیں کہ یہ ایف اے ایف ایس سی کر کے یہ آگے جائیں گے، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں داخلے لیں گے. لیکن جب آپ کا میرٹ کا سسٹم ہی جو ہے وہ ایک بے یقینی کیفیت کا شکار ہے، آپ کس طریقے سے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بنائیں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور بچوں کے جو امتحانات کے نتائج ہیں وہ خود ابھی تک بے یقینی کا شکار ہیں. یہ ایس او پیز ہیں جو ابھی تک بورڈز نے ایشو کیے ہیں کہ 12ویں میں پاس کر دیا جائے گا. اس کی مثال پہلے نہیں ہے. ایک دفعہ پہلے کہیں پاکستانی تاریخ کے اندر کسی زمانے میں، مجھے ایگزیکٹ سال یاد نہیں ہے، بچوں کو پروموٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں بھی کافی نقصانات ہمارے اسٹوڈنٹس نے اٹھائے. سر اس میں لاسٹ میں پوچھوں گا کہ یونیورسٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم آن لائن کلاسز کریں گے اور آن لائن امتحان کے بعد ہی پروموٹ کریں گے، تو یہ آپ فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے جو حالات ہیں اس کے حساب سے کیا اسٹوڈنٹس کے لیے یہ آسان ہے کہ آن لائن کلاسز کے ذریعے وہ اپنے لیکچر لیں؟ دیکھیے یہ کانسیپٹ تو مغرب میں چل رہا ہے، وہاں پہ سکولز میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہاں پہ آن لائن اسائنمنٹ اسسمنٹ پروگرام بھی چل رہا ہے. لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے 40% سے زیادہ طالب علموں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہی موجود نہیں ہے. جب ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے تو وہ کس طرح آن لائن کلاسز میں پارٹیسپیٹ کریں گے، کس طرح وہ اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کر کے اساتذہ کے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچائیں گے، اور پھر ان اسائنمنٹس کی اسسمنٹ اور نمبر لگنے کے بعد ان کی اہلیت کا جو ہے وہ تعین ہو سکے گا. تو اس پورے سسٹم کے اندر ابہام موجود ہے، اس پورے سسٹم کے اندر کوہرنسی موجود نہیں ہے. ہر یونیورسٹی اپنے طریقے سے مختلف ویبینارز کے ذریعے طالب علموں کو جو ہے وہ لیکچرز دے رہی ہیں، اور اسائنمنٹ کلیکٹ کرنے کے طریقے جو ہیں انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی مثال لے لیجئے، یا اس علاقے کے اندر موجود اور یونیورسٹیز کی مثال لے لیجئے کہ ملتان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ یونیورسٹیز وہ پورے جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے بچوں تک کو کور کرتی ہیں. تو جو بچے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے، ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، رحیم یار خان، صادق آباد کے علاقوں سے آتے ہیں اور دیہاتوں سے آتے ہیں، ان کے پاس تو وہاں پہ انٹرنیٹ کی بنیادی سہولت میسر نہیں ہے. تو وہ کس طریقے سے آپ کے آن لائن پروگرامز کے ذریعے فائدہ اٹھائیں گے؟ اپنے جو علمی تقاضے ہیں، جو اسیسمنٹ کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کر کے، ان کو فلفل کر کے، اپنی اسیسمنٹ کروا کے، اپنے نمبروں کا تعین کروا کے آپ ان کے ریزلٹس بنائیں گے. آپ ان کے ریزلٹس کمپائل ہی نہیں کر سکتے جب بچے کی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے، بچے کے پاس میٹیریل اویلیبل نہیں ہے، بچے کے پاس بکس نہیں ہیں، کیونکہ ماسٹرز لیول پہ اور بی ایس لیول کے اوپر تھیریٹیکل ایجوکیشن ہوتی ہے، ٹیکسچول ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے. اساتذہ بچوں کو کانسیپٹس دیتے ہیں، ریڈنگ میٹیریلز دیتے ہیں، اس کی بنیاد پہ بچے ریسرچ کر کے اپنے اسائنمنٹس کمپلیٹ کر کے وہ لاتے ہیں. تو جب ان کے پاس میٹیریل نہیں ہے تو وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ سر آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا کہ جو ابھی فیصلے لیے گئے ہیں اس سے یقیناً ہمارے اسٹوڈنٹ اس وقت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو، ایچ ای سی کو، اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے ہیڈز کو اس حوالے سے پراپر اقدامات کرنے ہوں گے. یہ حل نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اگلی کلاسوں میں پروموٹ کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا اگر اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے واضح پالیسی کا آنا اس وقت کافی
काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट इस वक्त इंतज़ार में बैठे हैं कि कब ये सिलसिला, जब एडमिशन का सिलसिले का आगाज़ होगा तो उस वक्त सूरत हाल काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पहले हम एंट्री टेस्ट के ज़रिए देख रहे थे कि सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब इस हवाले से किसी किस्म का सेटअप मौजूद नहीं है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन का सिलसिला अभी बंद है कोरोना की वजह से। तो इस हवाले से सूरत हाल आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किल होगी और जो स्टूडेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो काफ़ी ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। हमारे साथ ही रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं महकमा एजुकेशन की जानिब से जो पॉलिसी का ऐलान किया गया था, उस हवाले से हमने मिनिस्टर एजुकेशन की कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और उस हवाले से यही कहा गया कि हम इस बार जो स्टूडेंट्स हैं उनके इम्तिहान नहीं लेंगे, उनको अगली क्लासों में प्रमोट करेंगे। हमने पहले भी इस हवाले से बात की है। हम इस पर मज़ीद बात करने के लिए पहुँचे हैं मुल्तान में प्रिंसिपल वलायत हुसैन कॉलेज डॉक्टर फरीद शरीफ साहब के पास। हम उनसे जानेंगे कि वो इस पॉलिसी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और क्या इसका इम्प्लीमेंट मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो किस तरह ये मुमकिन है, उसके क्या नुकसानात या क्या खदशात उस पर वो इसका इजहार करते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हुकूमत पंजाब की जानिब से और हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से भी कई बार ये ऐलानात सुने हैं कि वो उसके हवाले से एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि अब इम्तिहानात इस पेंडेमिक में मुमकिन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इम्तिहानात हो सकते हैं? देखिए, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स अवेलेबल हैं, उनके हॉल्स अवेलेबल हैं, और अगर एसओपीज़ को फॉलो करते हुए हम सेक्शन वाइज या ग्रुप वाइज एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहें तो लिए जा सकते हैं इम्तहान। लेकिन इसके लिए जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एसओपीज़ पहले फ़ॉलो किए जाएं। उसके लिए कुछ ग्राउंड प्रिपरेशन जो है ना वो करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट लेवल पे, कुछ अमली की ट्रेनिंग और कुछ अरेंजमेंट्स हॉल के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके। दो चीज़ें चलें, एक तो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब इंटर में जाना है, अब दूसरे इंटर के स्टूडेंट जो अब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अगर उनके इम्तिहानात नहीं होते या जिस तरह पॉलिसी आएगी उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो कितना मुश्किल होगा कि बगैर इम्तिहान के किसी स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट कर देना या इंटर के बाद उसको यूनिवर्सिटी में ले जाना। तो ये पॉसिबल है या माजी में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? देखें, वैसे माजी की एक एग्जांपल भुट्टो के दौर में प्रमोट किया गया था, लेकिन वो स्कूल प्राइमरी 8 तक के क्लासेस में किया गया था। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि पेंडेमिक एक ऐसी इमरजेंसी थी जिसके लिए हुकूमत को ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स से ज़्यादा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एग्ज़ाम के बग़ैर प्रमोट करना एक बहुत बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें कुछ कबाहतें हैं। इसको आपका सवाल था कि इम्प्लीमेंट करना कहाँ तक पॉसिबल है। मेरा ये ख्याल था कि जब ये पॉलिसी दी गई तो उसमें कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। पॉलिसी देने से पहले कुछ माहिर जो थे तालीम से जो मुंसलिक हैं, उनसे अगर मशवरा साजी कर ली जाती तो उससे हमें कुछ बेहतर आउटकम मिल सकता था। मेरा ये ख्याल है कि जो 3% इन्होंने बच्चों के लिए जो फार्मूला जनरल दिया है वो अनजस्ट है, क्योंकि उसमें आप ये देखें कि जो अच्छे तालिब इल्म हैं, मेहनती तालिब इल्म हैं, उनकी हौसला शिकनी हुई है। अब इस के अंदर मज़ीद कुछ सवाल जनरेट होते हैं, मसलन कि एक बच्चा अगर पहले ही 97% मार्क्स पर है या 98% मार्क्स पर खड़ा हुआ है पार्ट 1 में, अगर आप उसे 3% देते हैं तो वो 100% से ऊपर चला जाता है। तो ये एक इसका कोई सलूशन नहीं है, यानी इसके लिए भी हमें पॉलिसी पहले क्वेश्चन मार्क लग गया इसके ऊपर के ड्राइव करनी पड़ेगी। सेकेंडली कि अगर आप इसको एग्रीगेट के ऊपर 3% इन्हेंस करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप उनको नहीं डील कर रहे तो जब उसका रिज़ल्ट कार्ड आप बनाएंगे तो उसके अंदर आप क्या शो करेंगे। देखें, जो फार्मूला इन्होंने प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई किया है उसमें यह है कि 50% तो उन्होंने 30 में से सबको दे दिए और बाकी उसका प्रोपोर्शनेट वेटेज दिया है नंबरों से जो कि थ्योरी में है। तो अगर ये फार्मूला प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई किया जा सकता था तो थ्योरी के लिए क्यों नहीं किया जा सकता था। इससे क्या फ़ायदा होता, जो ज़्यादा ज़हीन तलबा थे उनको एक एडवांटेज मिल जाता कि उनके थ्योरी में जितने सब्जेक्ट में जिसके जितने ज़्यादा उनकी वेटेज उसके प्रैक्टिकल की उसी से मल्टीप्लाई होकर आ जाती। तो या एक और इसका सलूशन ये था कि तमाम जो भी ग्रेड वाइज 90%, 80%, 70% के लिए कुछ स्लैब्स बना दी जाती,
या 3% कहने के बजाय अप टू 3% कह दिया जाता, ताकि एक फार्मूला डेवलप किया जा सकता कि किन को अप टू 3% देने हैं, किन को 3% से कम देने हैं, किसको 1% देने हैं, किनको 2%, व्हाट्सोएवर जो भी उन्होंने अपना एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने डिसाइड करना था। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स बाद में लगे हैं, हालांकि ये पहले रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे। इसमें लग तो यकीनन जल्दबाजी रही, क्योंकि अभी तक इस हवाले से वाज़िया नोटिफिकेशन भी नहीं जारी हुआ। बोर्ड इंतज़ामिया भी अभी भी इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। ये बताइएगा कि जैसे कि आप वलायत हुसैन कॉलेज में प्रिंसिपल भी हैं, तो अब पेंडेमिक के बाद जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो एडमिशन भी स्टार्ट होंगे, तो क्या पॉलिसी होगी? आप किस, पहले तो आपको पता है कि ये स्टूडेंट इतने नंबर लेके आया है, तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि हमारे स्टूडेंट इस रेशो में बैठे हैं, और इसके साथ साथ अब इस तरह की तो सूरत हाल आपको मुश्किल में होगा कि हम किस तरह जज कर सकें किस स्टूडेंट में कितनी मेहनत करना है, कितनी फोकस करनी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डिज़र्व नहीं करते, वो 3% भी नहीं ले सकते थे या फेल थे, उनको भी पास करके जब आप आगे प्रमोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरिट पर एक इसका बुरा असरात आएंगे, और आगे जो भी हमारे टीचर्स के रिज़ल्ट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स उनको मिलेंगे, उनके ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा डेफिनेटली। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो तकसीम है जहानत की, कुदरतन है। अच्छे स्टूडेंट डेफिनेटली अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, और टीचर का कंट्रीब्यूशन होता है कि बुरे स्टूडेंट्स को जो है ना, वो थोड़ा सा बुरे मींस जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो है, उनको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करवाने पे जो है ना मजबूर करें और उनके एग्ज़ाम लेकिन हमारे जो कॉलेज की पॉलिसी, जहाँ तक आपने पूछी एडमिशन की, वो तो वही है जो कि हमें यूनिवर्सिटी ने दी हुई है या बोर्ड ने दी हुई है कि आपने इनके टोटल मार्क्स लेकर उसका एग्रीगेट बनाना है आपने, तो उसके ऊपर तो सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि जो इनटेक होगी स्टूडेंट की, वो डेफिनेटली पुअर आएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये पेंडेमिक कुछ महीने और चलता है, तो आने वाले दिनों में कंपटीशन हमें नहीं मिलेगा कहीं भी, हमें इसी तरह मैनेज करनी होंगी चीज़ें। जी, मैं बिल्कुल ये चीज़ फोर्सी कर रहा हूँ कि ये कोरोना अभी आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, आगे इसके साथ हमें रहना सीखना है, बल्कि शायद स्कूल कॉलेजेस खोलने के बाद भी हमें कोई ज़ीरो पीरियड लगाने पड़े SOPs को डेवलप करने के लिए, स्टूडेंट्स को ये कम्युनिकेट करने के लिए, उनके लिविंग स्टाइल में तब्दीली लाने के लिए कि किस तरह से कॉलेज में इंटर होना है, किस तरह से लाइन अप होना है, कितना डिस्टेंस रखना है। ये हमें एक एडिशनल यूँ समझ लें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एजुकेट करना है स्टूडेंट को इस पेंडेमिक के अंदर। बता दीजिएगा कि क्या मुमकिन है इम्तिहानात लिए जा सकते हैं कोई SOPs बना के, जिस तरह हमने सास प्रोग्राम में देखा कि वहाँ भी SOPs आखिर में हुकूमत में सेटअप कर लिया, हज़ारों लोगों को पैसे दिए, तो क्या ये मुमकिन है कि हम स्टूडेंट्स को भी SOPs बनाकर उनके इम्तिहान ले सकें? जी बिल्कुल, मेरा ये ख़्याल है, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर तालीमी माहिरीन से मुशावरत करके जो अवेलेबल स्पेसिस हैं उनको यूज़ किया जाए। अभी देखें, हमारे पास टाइम है, हम सेशन डिले कर सकते हैं, हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक में भी जाके इम्तहान ले सकते हैं, इम्तहान लिए जा सकते हैं। अगर दिसंबर में भी लेना चाहें तो उस वक्त हमारे पास सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ऑनलाइन चाहें ऑनलाइन ले लीजिए, ताकि, और अगर रूरल एरियाज़ के बच्चों का कोई इशू होगा ऑनलाइन में, तो वहाँ फैसिलिटेशन सेंटर बना के, जैसे एहसास प्रोग्राम के हैं, तो इम्तहान लिया जा सकता है। मेरा ख्याल है इम्तहान लिया जा सकता है, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना मुख्तलिफ तालीमी माहिरीन की राय जानी, उसके साथ साथ वालदैन का भी आपने मौक़िफ़ जाना, जिसमें वो ये कह रहे थे कि इम्तिहान लिया जा सकता है, SOPs के तहत सेशन को डिले भी किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स की जो प्रमोट करने की अगली क्लास में है, उस पर काफ़ी इतराज़ात भी नज़र आ रहे हैं और पॉलिसी भी अभी तक वाज़िया नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से हमने मुल्तान बोर्ड इंतज़ामिया से भी बात की, चेयरपर्सन से बात की, उन्होंने इस हवाले से मौक़िफ़ देने से इनकार किया, तो हम उनकी राय इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सके। इस हवाले से तालीमी माहिरीन का ये कहना है कि अगर सेशन को डिले कर दिया जाए तो इस तरह हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक ही उनको नंबर दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।